ये क्वेश्चन आपका जी A2 का हमारा टॉपिक है और A2 के टॉपिक में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये टॉपिक का क्वेश्चन है और ये कब आया हुआ है आपका? ये आया हुआ अक्टूबर-नवंबर 1633 में क्वेश्चन आया हुआ है। अक्टूबर-नवंबर 1633 में कहता है क्या है जी, XY Limited has been trading for many years. Before the end of year audit, the chairman made the following statement: I am pleased to report that the profit for the year ended 31st March has increased from 86,000 to 174,000. These results have been achieved through careful cost control and concentrating on those areas which offer the greatest return. However, during the end of year audit, the auditor discovered the following: equipment with a net book value of 1,80,000 has become obsolete during the year but had not been written off. 1,80,000 का equipment था जो write off आपने करना था, बिल्कुल उसकी value it has become obsolete, so its value has become zero. And we know that impairment of assets IAS 36 states that your asset carrying amount should not be more than the recoverable amount, and recoverable amount is the sale value or the value in use. So here the recoverable amount is zero. आपकी recoverable amount zero है तो आपको अपनी net book value को कम करना पड़ेगा recoverable amount तक, तो आपको loss record करना पड़ेगा 1,80,000 का. The director believed that the building had increased in value by 2 lakh, which cancel out any loss on the obsolete equipment, so no adjustment had been made. Building का equipment से कोई concern नहीं है. It has nothing to do with the equipment. We have to, in case of obsolete asset have become obsolete, उसकी resale value कुछ भी नहीं है, तो it should be reduced. We should reduce the carrying amount of the non-current asset to the recoverable amount, which is zero. ठीक है जी. क्या करना पड़ेगा? The value of the asset reduced by 1,80,000 से माइनस करना पड़ेगा बैलेंस शीट में आपको, और impairment loss जो है should be recorded as an expense in the income statement. The method of inventory valuation has been changed at the end of year from FIFO to FIFO. The FIFO valuation has been 1,42,000, whereas the FIFO valuation was 1,84,000. तो आपने क्या किया कि FIFO की जगह FIFO यूज कर दिया. In case of rising prices, FIFO method used to give higher closing inventory, which will reduce the cost of sales, and we will get higher profit and more tax will be charged. वैसे भी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि once you have adopted a method, you should follow the same method from year to year. तो अगर आप ऐप को यूज कर रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे, आप इसे चेंज नहीं करेंगे. आप अपने मेथड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि FIFO में हाई इन्वेंट्री वैल्यू आएगी. इसकी वजह से आपका दो के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वही रहेगा, लेकिन करंट प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा. तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट आइए, तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा? द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा 42,000 से बैलेंस शीट में, क्योंकि हम ज्यादा शो कर रहे हैं. क्योंकि आप 1,42,000 में से माइनस कर रहे हैं ना, 1,84,000 आपने रिकॉर्ड कर दी. ये 42,000 आपका आ रहा है. इससे आपको बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी करंट एसेट में, और 42,000 आपको इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा लिखने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई और प्रॉफिट ओवर स्टेट कर गया, तो प्रॉफिट में से ये वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी आपको 42,000. फिर 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटेड टू 675,000 ड्यूरिंग द ईयर. अ डेट ऑफ 81,000 has been written off. However, a check for 75% of this amount had been discovered during the audit. इस 675,000 में से वो कहता है कि 75% जो है, जो कितना बनता है अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनता है आपका 506250. उसका कहता है कि 75% जो है वो 81,000 का जो डेट था उसका 75% जो हमें मिल गया है, उसका चेक हमें मिल गया, यानी वो मिल जाएगा. तो वो 60750 आपको बैड डेट्स रिकवर्ड है आपकी, वो आपको ट्रेड रिसीवेबल में भी ऐड करने पड़ेंगे आपको, और बैड डेट्स रिकवर्ड आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा कि आपके बैड डेट्स रिकवर्ड है. तो प्रॉफिट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा इस सवाल के अंदर. तो प्रॉफिट को अगर आप करेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ. प्रॉफिट फॉर द ईयर मैं यहाँ पे लिखूंगा. इस वक्त हमारा जो कि हमने निकाला हुआ है आपका है क्वेश्चन में 1,74,000 का, उसे बेटा हम करेक्ट करेंगे. इसमें से आप पहले तो लेस कर देंगे ऑब्सोलीट जो इक्विपमेंट है. ऑब्सोलीट इक्विपमेंट जो है वो आपका माइनस हो जाएगा, तो उसकी क्या हो गई है? इम्पेयरमेंट हो गई है. वो कितने का? 1,80,000 का हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. उसके बाद आपकी इन्वेंट्री जो है जो आपने ओवर वैल्यू कर दी थी FIFO मेथड यूज करने की वजह से, उसको आपको डिक्रीज करना पड़ेगा. लेस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन
ऑफ इन्वेंट्री, वो कितनी है आपकी वैल्यूएशन इन्वेंट्री, वो है 42,000 की, वो भी आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ज्यादा लिख दी आप। और आखिर में आपके बैड डेट्स रिकवर्ड जो हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से, जो पैसे आपकी कह रहे हैं 81,000 का, वो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनकम है ना आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, वो 81,000 का आपका आ जाएगा, 81,000 का आपका आ जाएगा 75%, जो कि आपका आ जाएगा 60750। ये आप इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, ये मैं ऐड कर देता हूँ, मेरा करेक्टेड प्रॉफिट जो है निकल आएगा, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ पहले 174,000, अभी दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, माइनस 1,80,000 माइनस 42,000 और प्लस 60750, 12,750 आपका करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा, जो कि पहले अनकरेक्ट था। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्टेड प्रॉफिट आपने फाइंड किया। हम देखते हैं सवाल में दोबारा एक दफा, एक्सप्लेन द टर्म स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या है जी? स्टीवर्डशिप इज बेसिकली ड्राइव होता है हमारा किस मकसद के तहत? स्टीवर्डशिप इज बेसिकली द अथॉरिटी गिवन बाय द ओनर फॉर द मैनेजमेंट of the resources of the company, that how you are going to manage the resources of the company, and stewardship is the person who is liable to manage the affairs of the company regarding anything, day to day expenses को meet करना हो आपने, चाहे safeguarding the assets हो, annual general meeting को held करना हो, books of accounts kept करने हो, financial statements माननी हो, तो directors basically company के directors जो होते हैं, they are known to be called as stewardship, because this is the duty of a person, of an individual, of a group of people who have been assigned a duty by the owner, ठीक है जी, for managing the affairs of the company, उसे हम stewardship में नाम देते हैं। तो 1,80,000 जो है वो आपका डेड लॉस है बेटा, इम्पेयरमेंट हो गई है, हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट 1,80,000, और इसमें आपने इन्वेंट्री फाइफो मेथड से ज्यादा लिख दी थी आपने 42,000 से, जिससे प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट कर गया था, तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से आपको ओवर वैल्यूएशन इन्वेंट्री माइनस करनी पड़ेगी 42,000, और ट्रेड रिसीवेबल आपके 81,000 के थे जो राइट ऑफ हो गए थे, लेकिन उसमें 75% आपको मिल जाने, तो वो ट्रेड रिसीवेबल, ये बेसिकली कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। IAS 10 कहता है if event has occurred and evidence of condition exists at the balance sheet date, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स के अंदर, एंड बुक्स को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, because this is the bad debts which has been recovered in the future, तो ये ट्रेड रिसीवेबल भी ऐड हो जाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट भी आप क्या कर देंगे, प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए ऐड कर देंगे, तो 12,750 का आपका प्रॉफिट जो है वो बन जाएगा। ये 12,750 का प्रॉफिट जो है वो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। आई कहता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन एंड ऑफ ईयर ऑडिट। एंड ऑफ ईयर ऑडिट का बेसिकली पर्पस जो है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है। तो एंड ऑफ ईयर ऑडिट का मकसद होता है, इट इज बेसिकली डन एट द एंड ऑफ द ईयर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन which is called an auditor, who is liable to express his opinion on the financial statements of the business, that they comply with the company's act, they comply with the international accounting standards, and they are showing true and fair view of the business. After getting reasonable assurance and after obtaining audit evidence, auditor gives an opinion that the financial statements are showing true and fair view of the business, and there is no material misstatement found in the financial statements. They are free from material misstatement. State whether the published audit report will be qualified or not. Definitely, in this case, we will issue a qualified audit report which states that there is material misstatement in the financial statement of the business, and financial statement needs to be corrected to give true and fair view of the business. So, qualified opinion will be given by the auditor that financial statements are not free from errors and frauds, and material misstatement needs to be handled, needs to be corrected. Discuss the correct accounting treatment of point number 1, 2 and 3 with reference to the relevant accounting standards. मैंने बता दिया है, पहले का जो है impairment of asset है 36 है, दूसरा मैंने आपको बताया IAS 2 है which states that inventory is valued at cost, और NRV whichever is less. तो here that is against the consistency concept के against भी है, और आपको पता है दोनों में से कम पे आपने लिखना है आपने, तो आपको 42,000 जो है वो माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से। Analyze the effect of any correction of the profit for the profit, वो मैंने किया है। Assess the implication of a qualified audit report, वो भी मैंने आपको बता दी है।
क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो कैसी होगी. क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली असिस्ट the shareholders and gives an opinion about regarding the financial statement of the business, that financial statements are not showing true and fair view of the business and there is material misstatement in the financial statement which needs to be corrected, and the financial statement needs to be revised and they are prepared again after the correction. Otherwise they are not showing true and fair view of the business, and profit disclosed in the financial statements are materially misstated और वो proper जो है वो ट्रू फेयर व्यू शो नहीं कर रहा बिजनेस का. ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले मैं करवा चुका हूँ, इसको डिस्कस भी कर चुके हैं. क्वेश्चन देखेंगे आपका है, LS Limited has completed its first year of trading. The company has 4 directors of whom 2 are not shareholders. The auditors are currently carrying out the end of year audit. Explain the term stewardship. एक्सप्लेन द टर्म स्टीवर्डशिप दोबारा आपके सामने जो है वो आ गया है. तो स्टीवर्डशिप को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्टीवर्डशिप को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं. दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ. स्टीवर्डशिप इज द रिस्पांसिबिलिटी व्हिच मैनेजर्स या डायरेक्टर्स हैव बीन गिवन फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, शेयर होल्डर के बिहाफ पे. ठीक है जी. Explain how directors carry out their role of stewardship within a limited company. Directors का रोल क्या होता है? Directors are responsible as stewards of the company to report at the annual general meeting to the shareholders about the performance of the business, to maintain proper accounting records, to maintain proper books of accounts, responsibilities for the preparation of financial statements. They are responsible for managing the day-to-day business, safeguarding the assets. क्वालिफिकेशन शेयर्स बताते हैं उसके अंदर, मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बताते हैं, और ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. ये डायरेक्टर्स का रोल होता है. एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एंड ऑफ ईयर ऑडिट. वो पहले भी मैंने बताया. एक्सटर्नल ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स टू क्वेरी आउट एन ऑडिट व्हिच इज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट examination of books of accounts to ascertain how the financial statements present a true and fair view of the business and comply with the company's accounting standards, and which should be an इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए. ये हम बताते हैं इसके अंदर. फिर वो कहते हैं जी कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, ऑल सेल्स वर मेड एट ए मार्कअप ऑफ 150%. क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि आपने कैलकुलेशन जो है वो शो करनी है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर शोड द फॉलोइंग. सेल्स दी हुई है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है. All sales were at a markup of 50%, 150%. बेटा मार्कअप अगर 150% है, तो मार्कअप को मार्जिन में आपको चेंज करना पड़ेगा. इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ओवर 100 प्लस परसेंटेज. 150 over 100 plus 150. 150 over 100 plus 150, it will become 150 over 250. That is going to be the margin for this question. ये margin में convert हो गया आपका. Calculate what should have been the value of the closing inventory. Calculate the gross profit for the year. वो हम बना लेते हैं. उसकी statement आपको properly बनानी पड़ेगी. यानी income statement develop करनी पड़ेगी आपको. बना लेते हैं. Problem नहीं है इसमें. Start हम कर देंगे जिस सेल से. सेल में से लेस कर देते हैं हम. सेल्स रिटर्न. इसमें ऐड कर देंगे सेल्स और रिटर्न बेसिस. सेल्स रिटर्न बेसिस का मतलब है सेल नहीं है, आपने उसे सेल्स कंसीडर कर दिया. सेल्स कितनी दी हुई है? सेल्स है 1,82,000 की और सेल्स रिटर्न है 82,000. सेल्स आपको दी हुई है जी 1,82,000. सेल्स रिटर्न कितनी है जी 8,000 की. माइनस कर देंगे हम. सेल्स रिटर्न बेसिस बेटा इसमें ऐड हो जाएंगी which is 6,000. तो क्यों ऐड करेंगे देखिए मैं बताता हूँ आपको दोबारा. कहते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द ऑडिटर it is discovered that included in the sales records, सेल्स में शामिल है was a sales invoice for 6,000 which has been prepared for a customer but had not been sent. The customer had received the inventory on a sales or return basis
but had not yet to decide whether or not to keep the inventory. इन्वेंट्री रखने की उसने अभी हमें इंटेंशन शो नहीं की, तो सेल्स रिटर्न बेसिस है, सेल में वापस ऐड बैक हो जाती है ये, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल्स। सेल्स रिटर्न बेसिस वापस सेल्स में ऐड कर देते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि सेल्स एक्चुअली अकर नहीं हुई, और क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी ऐड कर देते हैं हम, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री तो यहाँ हमने फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पर आपको बेसिकली ऐड करने की जरूरत नहीं है। सेल्स आपकी जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1,80,000 की, इन्वेस्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, वो मेरा ख्याल है दी नहीं हुई, ओपनिंग इन्वेंट्री तो मौजूद नहीं है हमारे पास। परचेजेज हैं 154,000 के, और परचेजेज रिटर्न भी है, 154,000 की लेस परचेजेज रिटर्न है, वो कितने की दी हुई है हमें, 12,000 की रिटर्न है। से 12,000 माइनस करते हैं पहले, और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है ना, ये 142,000 आ जाएगा आपका। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो हमें नहीं मालूम, जरा छोड़ देते हैं हम। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएंगी, और इधर आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 का हम निकाल चुके हैं मार्जिन, मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 250। बेटा मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ा है ना आपको, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है, तो आपका आ जाएगा 1,08,000। ये आपका जीपी निकला है जो उसने क्वेश्चन में फाइंड करने को है, 1,08,000, और 1,80,000 माइनस कर देंगे तो 72,000 का आपका ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। 1,42,000 माइनस कर देंगे उसमें से हम 142,000 माइनस 72,000, तो 70,000 की आपकी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आ जाएगी। लेस कर देंगे आप, ये उसने क्वेश्चन में हमें कहा था, create the closing inventory, what should have be the value of the closing inventory, वो हमने फाइंड कर लिया, 5 नंबर का था, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड कर लिया। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा फर्क आ रहा है सेल्स में, थोड़ी सेल्स में, सेल्स आपकी आ रही है, सेल्स और रिटर्न बेसिस हमने भेजा, थोड़ी सी गलती होगी, सेल्स में से हमने माइनस कर ली, तो हमने सेल्स शामिल की, तो 6,000 भी माइनस होना था, 6,000 भी बेसिकली क्या होना था, माइनस होना था। सेल्स और रिटर्न बेसिस हमने गलती से क्या करनी हुई है, शामिल करनी हुई है, ये तो सही निकाला है हमने, ये गलत हो गया थोड़ा सा। सेल्स और रिटर्न बेसिस सेल्स में शामिल करनी हुई आपने गलती से, जो कि सेल्स का हिस्सा नहीं थी, तो आपको इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1,82,000 माइनस 14,000, 168,000 की आपकी सेल था, मैं निकालूंगा ना, जीपी तो आप निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। उसका 150 डिवाइड बाय 250 आपका आ जाएगा 1,008,000। आंसर आप बताएंगे जी 1,008,000, उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। 6,000 सेल्स और रिटर्न बेसिस का था ना, वो आपने माइनस करना था, 1,008,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आपका निकलाएगा 1,008,000। ये जो है क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज 67,200, इसमें से आप 142,000 कर देंगे तो 74,800,
आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। सेल्स रिटर्न बेसिस का मतलब होता है बेटा सेल्स नहीं है, आप लोगों ने सेल्स कंसीडर करके सेल्स में ऐड कर लिया है तो आपको सेल में से माइनस करनी पड़ेगी, ये वजह है। फिर मैंने जीपी निकाला, जीपी को में से सेल्स में से माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, वहां से इन दोनों का डिफरेंस निकाल के रिवर्स जाके मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री या वो फाइंड करी। देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। अब ड्यूरिंग द ईयर द वेयरहाउस मैनेजर हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या कह रहा है हमें कि वो एब्सेंट रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और जिसकी वजह से there had been little control over the inventory. Staff had valued the inventory in the warehouse at the end of the year at 24,000. Inventory actually जो 24,000 आ रही है. Calculate the percentage change in gross profit if the inventory valuation from the warehouse has been used. कहता है percentage change in gross profit बताएं कितना आ जाएगा. तो क्या percentage change होगी? Closing inventory की value जो आपकी फर्क हो जाएगी कितने से, यानी closing inventory आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. पहले 74,800 थी, अब कितनी होगी 24,000. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज कर देगी माइनस 24,000, 50,800 से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज कर देगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हो जाएगी और जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. 50,800 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा. परसेंटेज चेंज कितना आएगा 1,00800 व्हिच इज जीपी नाउ माइनस 50,800 divided by 1,00800 और multiplied by 100 आप करेंगे, you will get the percentage change 50.4%. भी आप देख सकते हैं यही आ जाएगा आपका 50.4%, क्योंकि इतना चेंज आ रहा है इसके अंदर. ये आपका आंसर जो है वो निकल आएगा. $50,800 आ रहा है, यानी इसमें से आप चेंज जो आप देखेंगे ना, चेंज आपका आ रहा है 50,800 का, क्योंकि पहले आपका जीपी था ना असल में 1,08,000 और अब आपका जीपी कितना आ गया 50,800. अब जीपी आपका कितना आएगा 50,000. $1,08,000 था, अब आपका जीपी जो है वो 50,000 निकल रहा है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 50.4%. कैसे देखिए 74,800 था ना पहले, ठीक है जी, अब हो गया 24,000. 50,800 का डिफरेंस जीपी में पड़ेगा, तो 1,00800 माइनस 50,800, तो बेसिकली चेंज 50,000 का आ रहा है प्रॉफिट में. 1,00800 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 50,800 डिवाइडेड बाय 1,00800 इनटू 100 आप करेंगे, 50.4% का आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट. आगे देखते हैं. डिस्कस 3 पॉसिबल रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द वेयरहाउस इन्वेंटरी वैल्यूएशन एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी. तो कह रहे हैं जी डिफरेंस जो है वो दोनों में क्यों आ रहा है. एक तो ये कि इन्वेंटरी में हैव बिकम ऑब्सोलीट, इट कैन बी डैमेज्ड, इट कैन बी थेफ्ट, इट कैन बी लॉस्ट, स्टोलन भी हो सकती है. और दूसरा एक कंट्रोल है ना था हमारा, तो इन्वेंटरी कैन बिकम ऑब्सोलीट. और ये भी पॉसिबल है कि आपने इन्वेंटरी हैव बीन सेंट आउट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस, जो कि आपको नहीं माइनस करनी चाहिए थी ना फिर, या परचेज ऑफ इन्वेंटरी हैव बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये हो सकता है. ये सब रीजंस हैं इन्वेंटरी की. अब कहते हैं डिस्कस whether the director should use the warehouse inventory valuation or the amount from the accounting records. If the accounting records has been used, the book value is higher than the warehouse inventory. तो आपकी इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं. उससे आपकी इन्वेंट्री जो है ओवरस्टेट कर जाएगी. इन्वेंट्री ओवरस्टेट कर जाएगी तो आपका जो प्रॉफिट और करंट एसेट्स हैं वो भी आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी ना, प्रॉफिट भी ओवरस्टेट कर जाएगा और करंट एसेट्स भी ओवरस्टेट कर देंगे, व्हिच इज अगेंस्ट द प्रूडेंस कांसेप्ट एंड विल नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस. इन्वेंट्री आप लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी के, तो वेयरहाउस इन्वेंट्री विल बी यूज्ड rather than this inventory. अब वेयरहाउस इन्वेंट्री जो है वो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर.
ये क्वेश्चन अगला था, ये भी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ पहले। ये क्वेश्चन आप घर में खुद करेंगे, आसान है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 1832 का ये क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं है। नंबर 1832 का ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया जी, ये है फरवरी मार्च 1832 का क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। मार्च 1832 का, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रोल ऑफ शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर्स। रोल ऑफ शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स दोनों के रोल में क्या डिफरेंस होता है, ये वो बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही आसान है। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स जो है वो एजेंट होते हैं। शेयर होल्डर्स उनका वोटिंग वर्किंग राइट होता है, डिसीजन मेकर होते हैं, जबकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो स्टेवर्ड होते हैं, सिर्फ यानी कंपनी एम्प्लॉइज होते हैं एक तरह से। ओनर ऑफ द कंपनी मैंने बताया था, और वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होते हैं डायरेक्टर्स। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज they give responsibilities to the directors, जबकि they are accountable to shareholders, जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर शेयर होल्डर डू नॉट अफेयर इन द डेली ऑपरेशन, जबकि डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। They are also responsible for the preparation of financial statements, checking books of accounts, preparation books of account. शेयर होल्डर्स जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, जबकि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डेली ऑपरेशन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डिसीजंस में हिस्सा लेते हैं। फिर कहता है स्टेट वन रीजन व्हाई अ सोल ट्रेडर डज नॉट रिक्वायर एन ऑडिट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो ये है कि सोल ट्रेडर को दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट सोल ट्रेडर नीड टू गो फॉर द ऑडिट। एंड सेकेंडली ये है कि सोल प्रोप्राइटर जो है ना इज द ओनर, सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, who contribute capital and manage the affair of the company by himself. उसको जरूरत नहीं है एन ऑडिट, क्योंकि वो खुद ही कंट्रोल करता है और खुद ही मैनेज करता है, कैपिटल भी खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, मैनेज भी खुद ही करता है। अब उसने कहा एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आपने फाइंड करना है, वो हम जो वो निकालते हैं। आपका ओरिजिनल प्रॉफिट जो ऊपर दिया हुआ है सवाल में वो देखते हैं, फिर साथ साथ करते हैं। वो 78,000 का है, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ। ओरिजिनल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 78,000 का, वो हम लिख लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं, ये इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 120,000 आपने लिखी हुई है। As the purchasing cost had decreased, the company had changed its valuation method from first in first out to weighted average method. Inventory would have been 1,04,000 if FIFO had been used. FIFO यूज करेंगे तो इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए, 1,04,000 होनी चाहिए थी, ठीक है जी। जबकि हम कितनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1,20,000। इन्वेंट्री हम बेसिकली ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो चुकी है आपकी, 16,000 से आपका प्रॉफिट ओवरसेट हो रहा है, तो आपको इन्वेंट्री कम करनी पड़ेगी, बिकॉज इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि आपको इन्वेंट्री या दोनों में से कम पे रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो 16,000 आपकी इन्वेंट्री ज्यादा शो हो रही है, तो लेस कर देंगे आप यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये 16,000 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्वेंट्री इज वैल्यू एट मार्केट वैल्यू या एनआरवी, दोनों में से जो कॉस्ट है दोनों से कम होती है, उस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज अराइव्ड आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग डिविडेंड्स। बेटा डिविडेंड्स जो होते हैं दे कम इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दे आर नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर, दे आर पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दे डिक्रीज प्रॉफिट, लेकिन इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्रॉफिट करते हैं। दे आर नॉट एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसमें आप हो रहा है। तो ये दोनों अमाउंट आपने माइनस कर दी है गलती से, आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। इसमें ऐड हम कर देंगे डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड भी और प्रपोज्ड डिविडेंड भी, क्योंकि प्रपोज्ड डिविडेंड तो IS1 प्रपोज्ड डिविडेंड ये कहता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इट विल बी रिटन इन द स्टेटमेंट ऑफ फुटनोट के तौर पे आता है, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। प्रीवियस ईयर डिविडेंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है। प्रपोज्ड डिविडेंड और कहीं रिकॉर्ड किया जाता ही नहीं है, ये आपने माइनस कर दिया है गलती से, आपको वापस इसको ऐड बैक करना पड़ेगा।
इंटरम डिविडेंड को भी दोनों माइनस करती है ना, प्रपोज डिविडेंड को भी आपको ऐड बैक करना पड़ेगा 82,500। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि बोनस इशू ऑफ वन, वो तो भी आएगा नहीं इसमें क्योंकि इसका प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ 3-year एग्रीमेंट फॉर अ न्यू ऑफिस, द मंथली रेंट 21,000 का है। A total of 1,05,000 was paid during the year ended 31st December, and this amount has been charged to the income statement. 1,05,000 हमने चार्ज कर दिया इनकम स्टेटमेंट में। जुलाई बेटा ये है और हम दिसंबर तक का बना रहे हैं, तो कितने महीने बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स का रेंट आपने पे करना था। आपने पे किया हुआ 21,000 के हिसाब से 1,05,000 जो 5 मंथ्स का रेंट बनता है। 1 मंथ रेंट इज स्टिल ओइंग, स्टिल सपोज टू बी पेड। 1 मंथ रेंट हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो कि आपने अभी पे करना है और एक्सपेंसेस में आपने शामिल नहीं किया हुआ, जो कि यहाँ से माइनस कर देंगे आप कितना, 21,000 माइनस हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट फिगर पर आ जाएगा। करेक्ट फिगर प्रॉफिट की हमारी निकल आएगी, जो कि आपकी आ जाएगी 198,500। दैट इज द करेक्ट प्रॉफिट। थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ये सवाल, ये बात आपकी ठीक है, थोड़े टेक्निकल होते हैं, लेकिन आप दोनों सवाल करेंगे तो कम से कम 90% तो आप करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम नंबर 1 और 2 को एक्सप्लेन करें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आइटम नंबर 1 जो है इसमें हम पहले डिस्कस में आपके साथ अच्छे तरीके से कर चुका हूँ। आइटम नंबर 1 के अंदर हम क्या करते हैं, that is inventory is valued at cost and NRV whichever is less, though it is consisting concept के भी अगेंस्ट है कि FIFO जब प्राइसिंग प्राइसेस होती है तो FIFO हम रिकॉर्ड अगर करेंगे तो हमारी उससे इन्वेंट्री वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और हायर प्रॉफिट आपका आएगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि 1,04,000 आपने आप मेथड चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ही कहता है आपको, ये कहता है अब आपने इन्वेंट्री ज्यादा लिख दी हुई है कि आप वंस यू हैव अडॉप्टेड ए मेथड यू शुड फॉलो द सेम मेथड फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो 16,000 से इन्वेंट्री ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो गई है, जीपी बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरम डिविडेंड or proposed dividend will not come in the income statement, that will be charged against the profit in the statement of changes in equity, तो वो आपको वापस ऐड बैक करने पड़ेंगे। फिर उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को कहा है, वो आप बना सकते हैं, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई जाएगी, जनरल तरीके से, जनरल वे से, जिसमें एक तो आपका इंटरम डिविडेंड आप पे करेंगे, उसमें से सारी बातें, प्रॉफिट जो करेक्ट निकाला है वो लिखेंगे आप, और बोनस शेयर जो आप इशू कर रहे हैं वो भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कहते तो मैं बना भी देता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा पहले, बाद आपका शेयर प्रीमियम है रिटेन अर्निंग से, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है इसके अंदर, जनरल रिजर्व भी नहीं था इसलिए मैंने उसको भी यूज नहीं किया, मौजूद ही नहीं था तो मैंने इसको शामिल नहीं किया। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस आ जाएगा आपका, बैलेंस आपका आ जाएगा जी। बैलेंस देख लेते हैं कि बैलेंस कितना है हमारा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का 5 लाख, शेयर प्रीमियम है 80,000 का, 5 लाख का है, शेयर प्रीमियम आपका है जी 80,000, रिटेन अर्निंग्स आपकी है 94,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने क्रैक करके निकाला है, वो हम यहाँ यूज करेंगे। हमने क्रैक करके प्रॉफिट फॉर द ईयर फाइंड की है, इट इज 198,500। ठीक है जी, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा जी
बोनस शेयर्स जो आप इशू कर रहे हैं पहले इंटरम डिविडेंड माइनस कर देते हैं, कोई बात नहीं, वो आते ही नहीं है ना, उस तो कॉल ही नहीं होता। इंटरम डिविडेंड यहाँ से माइनस कर देंगे 75,000, बोनस शेयर इशू कर देते हैं। अगर 10 के बदले 1 है तो 50,000 के बोनस शेयर आ जाएंगे, और ये अमाउंट आप शेयर प्रीमियम में से निकाल लें, यानी शेयर प्रीमियम में से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, शेयर प्रीमियम आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए आप बताइए, ये आपका 5,50,000 हो जाएगा जी। 80,000 माइनस 50,000 दैट विल कम 30,000, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम। 94,000 प्लस 198,500 माइनस 75,000 217,000 आपका जो है उसका निकल आएगा रिटेन अर्निंग के सेक्शन। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व कर लिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी हमने बना दी है और एंड तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम अगली क्लासेस में करेंगे। इसमें भी देखें प्रपोज डिविडेंड वगैरह माइनस किया है तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। 25,000 की एडवर्टाइजिंग हुई है, इसकी प्रोविजन नहीं बनाई जाएगी। प्रोविजन होती है एक obligation which arises because of past event और whose occurrence के उसके जो उस occurrence is dependent upon the happening of a certain event। ये प्रोविजन क्रिएट करने की हमें जरूरत फिलहाल नहीं है, तो कंडीशन ऑफ इवेंट एग्जिस्ट भी नहीं करती है इस डेट पे। इसको हम डिटेल में करेंगे सवाल, ये वाला रिवाइज रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं आपने निकालनी है इसके अंदर। अगला सवाल जो है ये भी इसी पैटर्न पर है और बहुत आसान है, इसमें भी रिवाइज इनकम स्टेटमेंट वो मांग रहे हैं, तो इजीली हम बना सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 1933 का है और दूसरा मई जून 1932 का है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।